तो वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। और हम बात कर रहे थे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, काफ़ी दिनों से मेरी क्लासेस थोड़ी सी कंटिन्यूस नहीं हो पाई है ड्यू टू सर्टेन अनअवेलेबिलिटी। तो चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसका लास्ट टॉपिक रह रहा था। इससे पहले हमने लैक ऑपरॉन कंप्लीट कर लिया था, तो इसे क्विकली कंप्लीट करते हैं। चलिए, now in the preceding section you have learned that it is the sequence of bases in the DNA that determine the genetic information of a given organism, right? In other words, genetic makeup of an organism or an individual lies in the DNA sequence. Okay, यानी कि पूरा genetic makeup जो है वो किस में lies करता है? DNA sequence में. If two individuals differ, then their DNA sequence should also be different, at least at some places. ठीक है, पूरा DNA कभी भी डिफरेंट नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही DNA डिफर करता है दो इंडिविजुअल का. These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. With the establishment of genetic engineering techniques, where it was possible to isolate and clone any piece of DNA, and availability of simple and fast technique for determining DNA sequence, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in year 1990. Okay, ध्यान रखना 1990 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें ये टारगेट था कि हम पूरे ह्यूमन का जीनोम का पूरा सीक्वेंस पता कर लेंगे. ओके, क्यों पता कर लेंगे? आगे जैसे हम बात करेंगे वैसे तो क्यों पता करना है, ताकि हमें सीक्वेंस पता चलेगी तो उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होगा, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का, उससे रिलेटेड भी हम उस पर वर्कआउट कर पाएंगे. ओके, सो HGP वॉज कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट. ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ प्रोजेक्ट एज फॉलोज. अब देखिए इसकी क्या क्या एम्स थे, उसको देखकर ही हमें समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. Human genome is said to be have approximately 3 to 10 to power 9 base pair, and if the cost of sequencing required, it's around $3 per base pair. Can you imagine? So estimated cost in the beginning, the total estimated cost of the project would be approximately $9 billion. 9 billion. So further, if the obtained sequence were to be stored in, तो पहला गोल था. That's why it's a mega project. इतना बड़ा अमाउंट इस प्रोजेक्ट में लगा. Second, if the obtained sequence were to be stored in typical form in books, if each pages of book contain 1000 letters and each book contain 1000 pages, then 300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell. Can you imagine? तो ये दूसरा रीजन था कि उसको स्टोर करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था. The enormous amount of data expected to be generated also necessitate the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. तो अब क्या हुआ? अब नीड हुई कि ऐसी जगह उनको स्टोर किया जाए, ऐसे डिवाइसेस में स्टोर किया जाए जहाँ पे इजीली स्टोर भी किया जाए, वहाँ पे रिट्रीवल भी हो, वहाँ हम एनालिसिस भी कर सकें. So it was closely associated with the rapid development of a new era in biotechnology, that is bioinformatics. तो इसकी वजह से एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की और ज़रूरत होने लगी, क्योंकि कंप्यूटर की नीड हुई, डेटा को और स्टोर करना है, तो दैट्स वाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स और डेवलप होने लगा. तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट. अब इस प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या थे उसकी बात करते हैं. पहला, identify approximately 25,000 genes in a human DNA, क्योंकि और एक जीन में जितनी भी सीक्वेंस होती है, राइट. Determine the sequence of 3 billion chemical base pair that make up the human DNA. 3 billion sequences जो है उनको determine करना. Store this information in databases. Improve tools for data analysis. Transfer related technology to other sectors such as industries. And address the ethical, legal और social issues, जिसको हमने बोल दिया ELSI. जितने भी इस ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट जितने भी सोशल इश्यूज़ या एथिकल इश्यूज जनरेट हो रहे हैं उन सबको एड्रेस करना, दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. ठीक है बेटा. नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट. ध्यान रखना ये 13 साल चला था. कोऑर्डिनेटेड बाय हुम? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ये दो थे जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया. During the early years of HGP, Wellcome Trust became a major partner. Wellcome Trust भी आया था. Additional contribution came from Japan, France, Germany, China and others. The project was completed in 2003. Knowledge about the effect of DNA variation among individuals can lead to the revolutionary new ways to diagnose, treat and
someday prevent the thousand of disorder that affect the human being, है ना, क्योंकि सीक्वेंस पता होने लगेगी तो उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों के पता कर सकेंगे, उनके डिसऑर्डर्स फाइंड आउट कर सकेंगे. Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organism DNA sequence can lead to an understanding of their natural capability that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation. ओके, इन सब में हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी. Now many non-human model organisms such as bacteria, yeast, Caenorhabditis elegans, a free-living non-pathogenic nematode, Drosophila, fruit fly, plant rice and Arabidopsis have also been sequenced. मतलब ह्यूमन के साथ साथ इन सब की सीक्वेंस भी पता की गई. ठीक है बेटा, अब क्या बात करते हैं कि कैसे पता किया गया, क्या मैथडोलॉजीज यहाँ पे अप्लाई की गई. द मेथड इन्वॉल्विंग टू मेजर अप्रोच. वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज RNA रेफर टू एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. ध्यान रखना, ऐसे जीन विच आर एक्सप्रेस एज RNA, यानी कि हमने देखा था दो तरह की सीक्वेंस होती है, एक होती है एक्सोन और दूसरी बीच बीच में जो होती है दैट इज इंट्रॉन. ठीक है, इंट्रॉन जो है वो कैसी सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है. वो कह रहा है जब नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ये कुछ कोड करने ही नहीं वाली है, क्यों इसकी सीक्वेंस पता करना, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस जो है इनकी सीक्वेंस पता करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, है ना. तो क्या हो गया, EST, जो एक्सप्रेस हो रही है उन सीक्वेंस की टैगिंग करना. द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, और दूसरा था इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, यानी कि इसमें हम क्या पता कर रहे हैं, होल सीक्वेंस. ठीक है, इसमें सिर्फ वही सीक्वेंस जो कोडिंग थी, बट यहाँ पे हम होल सीक्वेंस पता कर रहे हैं that contain all the coding and non-coding sequence and later assigned during region in the sequence with function, a term referred to as sequence annotation. For sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragment of relatively small size. Recall DNA is a very long polymer and there are technical limitation in sequencing very long piece of DNA. ठीक है, क्या बोल रहा है, इन दोनों में से बाद में किसको प्रेफर किया गया, इसको प्रेफर किया गया, क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस का भी बहुत बड़ा रोल है DNA फिंगरप्रिंटिंग में. आगे बात करेंगे. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो आगे बात कर लेते हैं कि अब ये सीक्वेंस जो कर रहे हैं कैसे किया जा रहा है. तो क्या हुआ, मान लो इसका DNA का सीक्वेंस है, तो हमने इसको क्या किया, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करा, है ना. हर फ्रेगमेंट का सीक्वेंस पता किया, तो वो वही बोल रहे हैं, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया और क्लोन इन सुटेबल होस्ट यूजिंग वेक्टर्स, यूजिंग दी स्पेशलाइज वेक्टर. अब इस सीक्वेंस को मुझे पता करना है, ज़रूरी नहीं है एक बार में पता हो, ट्रायल एरर मेथड है. तो इसी सीक्वेंस को मुझे मल्टीपल टाइम प्रोड्यूस करना है, इस सीक्वेंस को भी मुझे मल्टीपल टाइम, हर सीक्वेंस को मुझे मल्टीपल टाइम. तो मल्टीपल टाइम कैसे प्रोड्यूस करना है, एक होस्ट के अंदर डालना है और वहाँ पे उसके मल्टीपल नंबर. अब होस्ट के अंदर डालने के लिए जो वेक्टर्स यूज़ होते हैं, okay dear friends, so that it could be sequence with yeast, the common use host were bacteria and yeast, and the vector were called BAC, bacterial artificial chromosome, and YAC, yeast artificial. ठीक है ना, ये जो होस्ट है ये क्या आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है या आपका ईस्ट भी हो सकता है. तो बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट के लिए ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. ठीक है, डन बेटा. आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना क्वेश्चन फ्रेम होता है, इनके फुल फॉर्म ध्यान रखना. The fragments were sequenced using automated DNA sequencer that work on the principle of method developed by Frederick Sanger. Remember, Sanger is also credited for developing method for determination of amino acid sequence and protein. इन्होंने amino acid के सीक्वेंस भी पता करी, DNA की सीक्वेंस भी पता करी, किसने पता करी, फ्रेडरिक सेंगर. ध्यान रखना. These sequences were then arranged based on some overlapping region present in that. अगर इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूँ तो देखिए, जब ये सीक्वेंस पता करते हैं ना तो इसको क्या करते हैं, ज़्यादा सीक्वेंस पता करते हैं, लाइक दिस, इतना, है ना, और इसका भी ज़्यादा. फिर क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, जो सीक्वेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगी वो ओवरलैप करेगा, एंड थ्रू दिस वी फाइंड आउट द होल सीक्वेंस. वो वही बोल रहा है, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग. Alignment of these sequences was humanly not possible. Therefore, specialized computer-based programs were developed. These sequences were subsequently annotated. Annotated यानी पता करना पूरी सीक्वेंस को, and were assigned
to each chromosome. The sequence of chromosome 1 was completed only May 2006. देखो बोल रहे हैं वो कि 2013 तक 3 तक चला है प्रोजेक्ट, बट ये वाला ये सिर्फ सीक्वेंस 1 के लिए, मतलब क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंस है वो May 2006 में कंप्लीट हुई. This was the last of 24 chromosome, 22 autosome and XY to be sequence. है ना. तो ये सबसे लास्ट में पता कि क्यों पता कि क्योंकि क्रोमोसोम 1 का जो सीक्वेंस नंबर है वो बहुत ज़्यादा था. Another challenging task was assigning the genetic and physical map on the genome. This was generated using information on polymorphism of restricted endonuclease recognition site and some preparative DNA sequence known as microsatellite. Okay, one of the application of polymorphism in repeated DNA sequence shall be explained in next section. तो इस चीज़ को हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं. पहले आगे ले लेते हैं सेलिएंट फीचर्स, है ना. अब देखिए इससे हमें क्या क्या रिजल्ट निकल के आया. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया तो हमें क्या क्या जानने को मिला. पहला, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर. द एवरेज जीन्स कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस बट साइज आर वेरी केयरली विद लार्ज नोन ह्यूमन जीनोम बीइंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस. ध्यान रखना, ठीक है. ओके, क्या था? डिस्ट्रोफिन, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, राइट. The total number of genes is estimated at 30,000, much lower than previous estimation of 82, 1,40,000. कितना एस्टिमेट किया गया, मतलब कितना पता किया? 30,000. Almost all 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल. सिर्फ 0.1 है जो डिफर करता है, जो डिफरेंट होता है हर पीपल से, और उसी के बेस पे हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं. द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन. ठीक है, उनके पता ही नहीं है आज तक फंक्शन. लेस देन 2% ऑफ ए जीनोम कोड फॉर प्रोटीन. सिर्फ 2%, वो भी लेस देन 2% ही कोड करते हैं. रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. ट्रू. Repeated sequence are stretch of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome number, structure, dynamics and evolution. ठीक है, ओके, क्लियर है. आगे चलते. क्रोमोसोम 1 जो है उसका इतना लेट सीक्वेंसिंग क्यों हुआ? 2006 में, मतलब 2006 तक वो चला गया बिकॉज इसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में जीन्स थे, दैट इज़ 2968. इतना लार्ज अमाउंट जीन्स को पता करने में इट टेक्स टाइम. एंड वाई क्रोमोसोम्स जो होता है उसके पास सबसे कम होते हैं, 231. तो इसका सीक्वेंस ईजिली हम पता कर सकते हैं. साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस. मतलब कि डीएनए की कोई बेसिस है, सपोज यहाँ ए है तो हो सकता है यहाँ पे उसका टी आई सी जी आई सी है. रेस्ट ऑल सीक्वेंस आर सेम, है ना, सारी सीक्वेंस बाकी की सेम है, बट एक ही पोजीशन पे दे आर शोइंग द पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. क्लियर हुआ? एक ही जगह में मतलब न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. प्रोनाउंस एज स्निप्स अगर इन ह्यूमन, इसको हम क्या बोलते हैं? SNPs भी बोलते हैं और स्निप्स भी बोलते हैं. दिस इन्फॉर्मेशन प्रॉमिस टू revolutionize the process of finding chromosomal location for disease resistant or associated sequence and trenching human physiology. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? SNPs क्या होते हैं कि पूरी DNA की सीक्वेंस है, उसमें एक जो है बेस पे चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ, दैट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. इसको स्निप्स भी बोलते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की. फ्यूचर यूज़ क्या है? Deriving meaningful information from the DNA sequence will define research through coming decade, leading to our understanding of biological system. This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from various disciplines in both public and private sector worldwide. One of the greatest impact of having the HG sequence may well be enabling a readily new approach to biological research. In the past, researchers studied one or few genes at a time. With the whole genome sequence and new high throughput technology, we can approach questions systematically and on a much broader scale. ठीक है ना, जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है डेफिनेटली हम और ब्रॉड स्केल पे इसको स्टडी कर सकते हैं. They can study all the gene in a genome, for example, all the transcript in a particular gene or organ or tumor, or how tens of thousands of genes and protein work together in interconnected network to orchestrate the chemistry of life. ठीक है ना,
तो ये सब हमें पता करना चलेगा जब हम इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हमें ये सब पता कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हैंड टू हैंड लेते हैं इसको। एज स्टार्टेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, हमने क्या बोला, 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन इज सेम। Assuming human genome is 3 into 10 to power 9 base pair, in how many base pair would there be difference? क्या होगा, that is 3 to 10 to power 6। इतनी बेस पेयर में क्या होगा, डिफरेंस होगा, बाकी सारी सीक्वेंसेस सेम होगी। It is this chances in sequence of DNA which makes every individual unique in their phenotypic appearance. If one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, sequencing the DNA every time would be a daunting and expensive task. Imagine trying to compare two sets of this base pair. DNA fingerprint is very quick way to compare the DNA sequence of any two individual, ठीक है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी सीक्वेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज ये नॉन कोडिंग रीजन है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये हमको पढ़ा होगा आपने, ये सैटेलाइट डीएनए जो है ये क्या है, इट इज़ नॉन कोडिंग डीएनए, ओके, नॉन कोडिंग पार्ट। तो ये क्या करता है, हर बार रेप्लिकेशन करने से इसका पार्ट छोटा होता जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लूज हो सकती है, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव डीएनए जो है, बिकॉज इन दीज सीक्वेंस अ स्मॉल सेट ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, these repetitive DNA separated from the bulk genome DNA as different peaks during density gradient centrifugation, okay। तो क्या बोल रहा है कि डीएनए जो है, इस जीनोमिक डीएनए जो बल्क है उसे सेपरेट किया और उससे हम देखेंगे हमें अलग अलग पीस मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, इससे डीएनए को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, डीएनए सेपरेटेड, ठीक है बेटा, ओके। आगे वो क्या बोल रहा है, द बल्क ऑफ डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक and base composition, major peak and base composition, length of segment, number of repeated unit. The satellite DNA is classified into many categories such as micro satellite, mini satellite। अब ध्यान रखना, जो ये रिपीटेटिव डीएनए है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो ये रिपीटेटिव डीएनए है इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सैटेलाइट डीएनए। वाई वी आर कॉलिंग इट सैटेलाइट, क्योंकि ये एकदम टॉप पे बैठ के आपको पूरा बता देता है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि सैटेलाइट दो तरीका होता है, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट, ठीक है। दिस सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, क्या बोल रहा है, बट दे फॉर्म अ ह्यूज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। दीज सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओके। अब ये ध्यान रखना, जो भी हमें पढ़ा कि माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट, तो मिनी सैटेलाइट आपका कितना होगा, माइक्रो आपका रहेगा इट्स अराउंड 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड का, और ये होता है 10 to 16 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। इस मिनी को ही हम क्या करते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, क्या बोलते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हैं हैंड टू हैंड, दैट इज VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। एंड इसको हम बोलते हैं STR, शॉर्ट टेंडन रिपीट्स, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेंडन रिपीट्स, ठीक है बेटा। तो उसने क्या बोला कि जो सैटेलाइट डीएनए है, बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट सैटेलाइट डीएनए, ये क्लासीफाई किया गया माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट में। These sequences normally do not code for any protein, but they form a large portion of human genome. These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. समझ में आया। तो ये जो सीक्वेंस है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी कर रही है, तो यही बेस हो गया हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। Since DNA from every tissue such as blood, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm from an individual show the same degree of polymorphism. They become very useful identification tool in forensic application. Further, as the polymorphism are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes. ठीक है, कैसे किए जाते हैं अभी थोड़ी देर में समझा देती हूँ। As polymorphism DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand that DNA polymorphism means in simple terms. तो वो बोल रहा है कि भाई ये यूज़ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि DNA morphism होता क्या है। Polymorphism variation at genetic level arise due to mutation. Recall different kind of mutation and their effect that you have already studied in chapter 4.
As in preceding section in this chapter, new mutation may arise in an individual either in the somatic or in the germ cell or hybrid cell, sorry, reproductive cells that generate gametes in sexually reproducing organism. If a germ cell mutate does not seriously impact individual ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to other member of population of sexual reproduction. ठीक है, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है, राइट? ओके, आगे चलते हैं. नाउ allelic, again recall the definition of allele. Sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism. If more than one variant at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01, in simple term, if the inheritable mutation is observed in population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher, as mutation in these sequence may not have any immediate effect or impact in an individual reproducing ability. समझ में आ रहा है? इसलिए हमें नॉन कोडेड सीक्वेंस ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, वो नॉन कोडिंग रीजन में ज़्यादा शो कर रहा है. कोडिंग रीजन में यानी कि सब इंडिविजुअल एक दूसरे से सिमिलर है. तो नॉन कोडिंग में अगर हम उसका मतलब सीक्वेंस पता करें या उसका डीएनए देखेंगे तो उसके थ्रू हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability of polymorphism. There is a variety of different type of polymorphism ranging from single nucleotide changes to various large scale changes. For evolution and speciation, such polymorphism play very important role, and you will study these in detail at योर प्लेस और एट हायर क्लासेस. ठीक है ना? तो ये बस इतना ध्यान रखना कि इवोल्यूशन और स्पीशीशन के लिए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी. याद रखना, नाम क्वेश्चन फ्रेम होता है. क्या साइंटिस्ट है? एलेक जेफरी. He used a satellite DNA as a probe that show very high degree of polymorphism. It was called variable number tandem repeats. मैंने आपको बताया था, जो मिनी सैटेलाइट है उसको हम बोलते हैं VNTR. ठीक है ना? तो ये VNTR क्या कर रहा है? यूज एज अर्लियर इन्वॉल्विंग सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडेशन यूजिंग रेडियो लेबल VNTR इज अ प्रॉब. अब देखिए प्रोसेस कैसे होता है वो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है ना? सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी डीएनए का हमें जीनोम पता करना है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, उसका आइसोलेशन करना है किसी भी सोर्स से. देन डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. ये जो आरी एंजाइम है, इसकी आरी साइट होती है, ये वहीं पे अटैक करता है. मान लो ये डीएनए है तो इसके दोनों तरफ, तो क्या होगा, इसके दोनों तरफ कुछ आरी साइट होगी जहाँ पे आके ये आरी अटैक करेगा और डाइजेशन करेगा इस डीएनए का. बीच बीच में भी आरी साइट हो सकती है, डीएनए को बार बार डाइजेस्ट कर देगा. अब डीएनए के अलग अलग बैंड मिल गए तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय शेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसको मैं वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर मैं आपको भी बता देती हूँ. यहाँ पे अपने डीएनए को लोड किया, ठीक है ना, इसका सर्किट ऐड कर दिया और ये क्या होगा, सर्कुलेट होगा और गो थ्रू करेगा. तो जो सबसे ज़्यादा हैवी होगा वो सबसे पीछे रह जाएगा. रेसिंग वाला मैं आपको एग्जांपल बहुत बार बता चुकी हूँ कि रेसिंग जो करेगा, अगर हेल्दी पर्सन है तो वो पीछे रह जाएगा और जो सबसे थिन होगा वो सबसे आगे जाएगा. आर यू गेटिंग लाइक दिस? ठीक है ना? तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा डीएनए का. तो ये सेपरेशन कहाँ हुआ है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में. नाउ transferring of separated DNA fragment to a synthetic membrane such as nitrocellulose और nylon membrane. ध्यान रखना, अब इसको हमने शिफ्ट कर देंगे सेम ऐसे ही एक मेम्ब्रेन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोस या नाइलॉन के मेम्ब्रेन, जहाँ पे इस डीएनए प्रिंट्स को या आप बोल सकते हैं फ्रेगमेंट्स को एज इट इज आप शिफ्ट कर सकते हैं. उसके बाद क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR प्रोब. अब क्या होगा, उसमें जहाँ जहाँ भी VNTR है वहाँ पे जाके प्रोब बाइंड हो जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. Probe will get bind जहाँ जहाँ भी VNTR sequence है. The autoradiogram gives many bands of different size. These bands give a characteristics pattern for an individual DNA. ठीक है? It differs from individual to individual in a population. Technique has been increased by use of polymorphism, या फिर आप बोल सकते हो by use of polymerase chain reaction. है ना? आपको अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है, तो you can use PCR. We'll study about it. Subsequently, DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. In addition to application forensic science, it has much wider applications such as
in determining population, genetic variability, diversity. Currently many different props are used to generate DNA fingerprinting. तो ध्यान रखना ये इनके यूजेस है. अब मैं आपको समझाती हूँ कि DNA फिंगरप्रिंटिंग किया कैसे जाता है, ठीक है ना. मान के चलो ये दो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी. ये सस्पेक्ट है, एक क्राइम हुआ एक स्पॉट पे जहाँ पे हमें क्रिमिनल का कुछ मिला, हमने उसका DNA आइसोलेट किया, उसको फर्दर RE से ट्रीट कराया, उसको सेपरेट किया, उसको नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे शिफ्ट किया, उसके अगेंस्ट उसका प्रोब जो है वो भेजा. प्रोब जहाँ जहाँ अटैच होगा वहाँ लाइट शो करेगी और हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है बेटा. तो यहाँ पे अब हमें सस्पेक्ट दो है, ए सस्पेक्ट बी सस्पेक्ट. तो हमने क्या किया, एक क्रोमोसोम 7 लिया, 2 लिया एंड 16 लिया. अब ध्यान रखना किसी भी क्रोमोसोम में जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसका एक पार्ट फादर से आता है और एक पार्ट मदर से आता है. तो जो फादर से आ रहा है दैट इज पेरेंटल क्रोमोसोम. हो सकता है उसमें जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीट्स, जो सैटेलाइट सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रही है वो हमें देखना है, राइट ना. तो यहाँ पे 3 टाइम्स वो रिपीट हो रही है, 1 2 3, एंड यहाँ पे रिपीट हो रही है वो 4 टाइम्स, ठीक है. क्यों हो रही है ऐसा, क्योंकि मदर से अलग आ रहा है, फादर से अलग आ रहा है, बट ये दोनों सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वैसे तो ये ज़्यादातर नॉन कोडिंग सीक्वेंस ही हम पता कर रहे हैं, राइट. क्रोमोसोम 2 में पैटर्नल में जो भी नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है बेटा. ऐसे ही क्रोमोसोम 16 में भी हमने लिया, यहाँ पे भी अलग अलग आपको नंबर आ रहा है, मैं कुछ भी लिख देती हूँ, राइट. फिर हमने इंडिविजुअल बी में भी सेम क्रोमोसोम 7 2 एंड 16 यही क्रोमोसोम लिए. इन्हीं क्रोमोसोम को हमने RE से ट्रीट कराया, फ्रेगमेंट्स मिले, DNA सेपरेट किया, नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन से अटैच कराया, प्रोब के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया. तो यहाँ पे हमें 9 आई थिंक और ये 7 है, राइट. फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन 7, देन 1 2 3 4 5 एंड 1 2, ठीक है. ये एक सीक्वेंस हमें मिल गई इंडिविजुअल ए और बी से. जब हम इसको लोड करते हैं तो देखिए जो 8 सीक्वेंस का वो ज़्यादा हैवी है तो वो पीछे ही रह जाएगा. तो हमने नंबरिंग से इसको लोड किया है ना, ये ए का है ये बी का है, तो आप लोड करते जाएंगे. देखिए क्रोमोसोम 7 को लेके चलिए, क्रोमोसोम 7 में है 3 नंबर पे, तो देखिए क्रोमोसोम 7 ए जो है 7 3 नंबर पे हमें एक लोड कर दिया रेड कलर. अलग अलग कलर इसलिए शो किया ताकि आपको ईजी जाए पहनने में समझने में. दूसरा है रेड कलर एंड तीसरा है यहाँ पर ग्रीन कलर, ठीक है. तो अलग अलग कलर से हमने शो किया उनके बैंड्स जहाँ भी सेपरेट आउट हो रहे हैं. इसके अगेंस्ट हमने एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रखी और उसको शिफ्ट करा, ठीक है. जो क्रिमिनल था जो क्राइम सीन से मिला उसमें भी हमने यही किया. क्रोमोसोम 7 2 एंड 16 अलग अलग नंबर मिले, इसका भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके बैंड सेपरेट आउट किए. एंड जब हम इसको मैच करें इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू बी, है ना, एग्जैक्टली सिमिलर टू बी. तो डेफिनेटली जो बी पर्सन है इंडिविजुअल वो क्या है, क्रिमिनल है, क्योंकि क्राइम स्पॉट से जो हमें मिला सोर्स उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करें कि इन पर्सन में से क्रिमिनल कौन है, बिकॉज इन दोनों का मैच कर रहा है तो ये क्रिमिनल है, ठीक है. अब एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो कि फादर है, फादर से क्या सन, ये आजकल बहुत कराते हैं और पता करने के लिए हम क्या करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं. बट आप ध्यान रखना ये जो फादर से सन में हो रहा है इट इज़ नॉट आइडेंटिकल, एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि सन में फादर की कॉपी तो आ ही रही है, मदर की भी कॉपी आ रही है, बट ये काफ़ी हद तक सिमिलर शो करेगा. इसी बेसिस पे हम फादर और सन का रिलेशन पता कर सकते हैं. डिड यू गेट इट, समझ आई ये बात, है ना. एक और चीज़ ध्यान रखना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं RFLP, मतलब क्या, और इसमें ही PCR यूज़ होता है. RFLP क्या है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है. तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की RE एंजाइम के थ्रू लेंथ अलग अलग लेंथ का DNA बन रहा है जिसकी जो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड RFLP. सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग में. बट ध्यान रखना क्रोमोसोम सेम ही लेंगे, उसके थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. किया कैसे है, ये वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू किया, है ना. और ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. उसके अलावा कौन कौन से सैटेलाइट DNA होते हैं वो ध्यान रखना. ओके, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग ऐसे ही DNA ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट.
सो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। टिल देन ये पूरा चैप्टर पढ़ के रखिए। इस संडे चैप्टर 6 का टेस्ट कंडक्ट होगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।